So Jawad Saab, you mentioned you have a twin. Do you enjoy sharing a birthday, or would you rather have the spotlight? Acha, I'm very shy birthday person. I get embarrassed when people, tell me कि it's your birthday and we have brought this cake. मेरी team के members या otherwise even. So I'm not a big celebrator of birthdays. हाँ, अपने family members या अपने बच्चों का या वो आपको करना होता है. बेगम की अक्सर मैं भूल जाता हूँ birthday, जिस पे मुझे फिर वो बाद में परेशानी भी होती है. So my twin is not identical twin, but we have lot many things in common because we grew together. We both are outdoor sporty. हमने साल के 365 दिन अपने स्कूल कॉलेज के ज़माने में स्पोर्ट्स खेलते थे. Almost 365 days of the year, come hail, come storm, come rain. So lot many things that we share together. हमारे common interest हैं. But obviously he is a different personality. I'm a different personality. वो कुछ फ़र्क भी है हमारे अंदर. So ये as we are different humans. How do you enjoy the shared moment on your birthday? How do you celebrate it with your twin? अच्छा, हम हार्डली कभी हमने इकट्ठे केक काटा. वेरी फ्यू टाइम्स बचपन में काटे हैं. वो एक्चुअली हमारे कंट्रोल में नहीं था, वो पेरेंट्स ने काटे हैं. अब ही इज़ बिजी इन टू हिज लाइफ, आई एम बिजी इन टू माई लाइफ. बट यूजली हम एक्सचेंज करते हैं ऑन द बर्थडे. एक्चुअली हमारी फैमिली मेम्बर्स ही हमें हमारे कुछ फैमिली के कुछ कॉमन ग्रुप्स हैं. कुछ हमारे कज़न वज़न पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर. छोटे भाई हमारे 2 हैं. सो वो हमारे बच्चे, पेरेंट्स एंड देन एक्सटेंडेड फैमिली. सो वो हमें इकट्ठे विश कर रहे होते हैं. अब मैं उसको शर्म में मैं उसको बर्थडे हैप्पी बर्थडे कह रहा होता हूँ, वो मुझे कह रहा होता है. सो यस. बट इन टर्म्स ऑफ थ्रोइंग अ पार्टी, इसमें ज़रा कॉस्ट सेविंग हो जाती है कि 2 हेड्स जो है ना वो एक ही पार्टी में आप कवर कर लेते हैं. तो सर, एज वी ऑलरेडी एस्टैब्लिश कि ह्यूमंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. HR है, जाहिर बात है कंप्लेंट्स तो आएंगी. Which was the most absurd or let's say funny complaint that you had? I can't think of any particular absurd, so I don't want to say. We get all sorts of requests, all sorts of comments, all sorts of wishes, all sorts of. As I said, humans are most unpredictable species. So sometimes, or many a times rather, this surprises us. Are you saying this? So let's not name those. अच्छा, HR में HR फंक्शन में एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि we as a requirement of the profession, so we have individuals' personal and professional information with us. हम उनकी डेट ऑफ बर्थ से लेके उनकी फैमिली इंफॉर्मेशन, उनकी सैलरी इंफॉर्मेशन, उनकी एजुकेशन की इंफॉर्मेशन, उनकी हेल्थ की इंफॉर्मेशन, उनकी परफॉर्मेंस रेटिंग्स, उनकी जो भी वो सारा कुछ हमारे पास होता है और प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है. एंड वी आर द गार्डियंस ऑफ दैट. और हमारे लिए बड़ा ये एक हमारा भी टेस्ट है कि हाउ डू वी कीप दैट इंफॉर्मेशन. जहाँ हमें ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए इंडिविजुअल्स के बारे में, चाहे उनकी एलोकेशन है, चाहे उनकी प्रमोशन है, चाहे उनकी ट्रांसफ़र्स हैं, या उनकी स्किल्स को असेस करते हुए उनको ट्रेनिंग्स पे भेजना है, या उनकी पोटेंशियल को देखते हुए भेजना है. सो वो इंफॉर्मेशन हमें यूज़ करनी है. But during that process, वो personal and professional, and personal sometimes means personal information, बच्चों की information, parents की information, वो भी हमारे पास as per record, as per requirement होती है. So हम अमानतदार भी हैं. We have to keep those, that data, the information of those individuals with us, and as a guardian, we need to keep that confidential, and make a decision what information to be used and what information to be shared. So इसलिए आपने क्वेश्चन किया कि सिली या absurd या strange request लोगों की वो आती हैं, different आती हैं, but let's not get into confidential होगी information. Request भी confidential. One HR
myth you'd like to burst? एक तो मैंने पहले बस्ट कर दी कि HR manager, people like me or my colleagues in HR function are the HR manager. Actually, the line manager is the actual HR manager. Actual HR management वो करते हैं. Yeah, that's a very interesting way of looking at it. ऊपर से नीचे कर दिया आपने. हाँ, सारा burden line manager को shift कर दिया. Yeah. मसाज उनके पास. It's not burden. That's what the role of a supervisor is. As we move along in our careers, so we do our individual work. हमें अपना individual work मिलता है. जैसे जैसे हम अपने career में move करते हैं, everybody wants to manage a team. They want to become supervisor. They want to become a manager. They want to become a head. So that means more people reporting into them. जब more people reporting into them, that's a responsibility. And not everybody is cut out for that. It doesn't mean कि वो इस काबिल नहीं है. It's a responsibility. So अगर responsibility लेनी है तो आपको ज़ाहिर हम अथॉरिटी भी देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी है, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का हर कोई अहल भी नहीं हो सकता. तो इसलिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए यू शुड बी रेडी. And how do you assess if somebody has the required leadership qualities to become a manager? देखिए, every year and there's an annual appraisal cycle whereby supervisors or the line managers, मैं generic term use कर रहा हूँ, title can be anything else. So when I say supervisors, that means anybody managing a team. And likewise, when I say manager, so that somebody managing team. वो manager or supervisor can be sitting at the head level of the function, can be simple team manager or team lead, or वो regardless of that point. So you are responsible for other individuals as their supervisor, as a team leader. So उस role के अंदर आपको अपनी responsibility discharge करने के लिए एक तो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि उनका काम का पता हो. अच्छा, हम उनको कैसे जज करते हैं या हमें कैसे जज करना चाहिए? एवरी ईयर वी गेट assessment of those individuals, various traits जो ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किए हुए हैं, जिसमें पर्सनल, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल ट्रेट्स हैं जो जिसके ऊपर उनका सुपरवाइजर उसके ऊपर रेट कर रहा होता है, जिनको हम KPIs कहते हैं. जिन्हें KPIs एक पार्ट है जो बहुत स्पेसिफिक टू योर जॉब है, एंड देयर आर अदर डेवलपमेंटल साइड, द पर्सनैलिटी साइड के भी हैं, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स है, जिसमें डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, जिसमें नेगोशिएशन स्किल्स हैं, जिसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, एंड देन वो उसके नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं. सो दोज जेनेरिक कॉम्पिटेंसीज भी पार्ट ऑफ द असेसमेंट होते हैं अलॉन्ग विद द पर्टिकुलर KPIs जो जॉब रिलेटेड हैं उस साल के, उस टाइम पीरियड के. उसका फीडबैक हमारे पास कलेक्ट होता है, वो रिलीजियसली कलेक्ट होता है. उसके अंदर एक 6 मंथली या बाय एनुअली भी फीडबैक आता है. द वर्ड अप्रेजल, आपने मिथ बर्स्ट करने की बात की. सो अप्रेजल में बहुत सारे लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती कि व्हेन वी से परफॉर्मेंस अप्रेजल, सो अप्रेज का मतलब ये है बताना, कि व्हेन यू आर असेसिंग एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस, सो यू टेल देम कि दीज आर द एरियाज दैट यू आर सपोज टू परफॉर्म एट दिस लेवल, एंड देयर you are standing above or below, and accordingly, if you are standing above, keep up, do this also. If you are standing below, catch up. And how to catch up, वो भी आप mentoring करते हैं, coaching करते हैं, बताते हैं उनको. So appraisal, performance appraisal का मतलब है to appraise, to tell them. It's just not simply assigning rating. सो इस प्रोसेस से हमारे पास हर इंडिविजुअल के बारे में साल में 2 दफ़ा, और एनुअल के ऊपर तो वो फाइनल, जिसके ऊपर फिर रिवॉर्ड सिस्टम भी है एंड एक्नॉलेजमेंट का सिस्टम, फॉर्मल सैलरी इंक्रीज का एंड बोनसेस का, वो भी अटैच्ड है उसके साथ. फिर से इंडिविजुअल की अपनी प्रोग्रेशन का डाटा हमारे पास होता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी पास्ट की हिस्ट्री क्या है, उसने उसके पास्ट के रोल्स के अंदर स्किल्स क्या बिल्ड हुई हुई है, उसकी बेसिस पे हम फैसला करते हैं कि, एंड देन one step ahead,
एक और चीज़ है, पोटेंशियल असेसमेंट के टेस्ट होते हैं. So there are tools available, external as well as internal. We deploy those tools जिसकी बेस पे हम इंडिविजुअल का पोटेंशियल असेस करते हैं कि दिस इंडिविजुअल हैज़ अ पोटेंशियल टू शोल्डर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. पुट एवरीथिंग टुगेदर, उसकी बेस पे फैसला होता है कि दिस पर्सन इज रेडी फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट. While hiring, one soft skill that you would say makes an employee more attractive? Attitude. So somebody can be extraordinarily skilled or somebody can be an extraordinarily knowledgeable. Third part is attitude. अगर attitude ठीक नहीं है, skills and knowledge can be wasted or many a times are wasted. अगर attitude ठीक है, skills और knowledge में कमी है, कोई shortcoming है, with attitude you can gain those. So attitude is the main thing that I look for people whenever I hire or promote. If attitude is right, anything is possible. Absolutely. So if HR had a theme song, what would it be? है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हो. क्या बात है. One thing that employees should stop expecting HR to fix. एक quick fix जो होता है ना, जो आपसे लोग expect करते हैं. Stop grapevine, unnecessary petty talks, unnecessary guessing. वो आपको wavered कर देता है अपने objective से. Believe in yourself. Believe in the system. Believe in your abilities. One habit of yours that you're trying to break? I tend to stay late in office. मुझे लगता है मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ. So I try to finish my work as much as I can, which I have never been able to do that, and end up staying late. And most of the time I am the last one to go from this office, at least, and many people know that. This is something I need to work upon. Not that कि मैं दिन में काम नहीं करता. So I'm always busy, you know that. और वो टाइम भी ज़ाया नहीं करता. मैं कोशिश करता हूँ टाइम भी ज़ाया ना करूँ. और वो वर्क लाइफ बैलेंस ऐसी चीज़ है जो आई थिंक there are certain time which are there for family, for yourself, that I compromise on, and perhaps वो एक certain age में required था. उसी ने help किया. मैं अपने करियर में अगर मैं hindsight पे पीछे बैठ जाके देखता हूँ, so that एक और चीज़ मैं अक्सर इसी से रिलेटेड मेरे जहन में आ गई, सो मैंने कहा बेनिफिट हो जाए. सो अगर आप जो भी काम ऑब्जेक्टिव जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक काम कर रहे हैं, सो इफ़ यू आर डूइंग दैट, यू आर जस्टिफाइंग योर सैलरी, यू आर गुड. 5 रेटिंग लाइकेट स्केल के ऊपर, दैट इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, based on your qualification, based on your experience, based on your skills. So we are commercial organizations, you're being paid to do a job, and if you're doing that with the agreed quality and agreed quantity, agreed desired productivity, you are good, average. ठीक है, 1 to 5 scale के ऊपर you are in the middle. If you are stretching yourself, so that means you are in, if not all, certain areas में आप going above, you are exceeding your targets, then you are very good, you are above average. And if you are exceeding all parameters with a wide margin, consistently, over a period of time, then you are excellent. अक्सर लोगों से ये गलती होती है कि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं तो excellent हूँ. This is not excellent. हम एक पेड जॉब कर रहे हैं, और ये बात शायद कुछ लोगों को अच्छी भी ना लगे, लेकिन ये रियलिटी है. दैट इज़ हाउ दुनिया भर में और हमारे पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस का जो परफॉर्मेंस का सिस्टम है असेसमेंट का, एंड लाइक वाइज इवन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में वो भी ऐसे ही है. ओके, अच्छा, अगर आपको तरक्की करनी है जल्दी और ज़्यादा तरक्की करनी है, तो अगर आप रूटीन की जॉब कर रहे हैं और रूटीन का काम कर रहे हैं और रूटीन की डिलीवरी कर रहे हैं जो आपसे एक्सपेक्टेड है,
जिसकी हमें तनख्वाह मिलती है, तो वो आपके रूटीन के टाइम में नहीं हो सकती. आई एम नॉट सेइंग स्टे लेट लाइक मी, आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट एट ऑल. All I'm saying is reinvest in your career, in your spare time. Find time on your weekends, after hours. Assess if you are doing a job and think about yourself, whatever and the way you're doing that job, if anyone in the world can do that job better than you better be that person. आप अपने आप को यूं असेस करें कि ये जॉब है, अगर इससे बेहतर कोई कर सकता है, कौन कर सकता है? जी हाँ हाँ. पहले तो ऑनेस्ट रहें अपने आंसर में, अपने क्वेश्चन में, अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपने आप से आंसर ले रहे हैं, तो ऑनेस्ट रहें उसमें. अपनी बायसनेस को साइड पे करें, अपनी डिफेंस को साइड पे करके. और ये अगर सवाल का जवाब ये आता है कि हाँ कर सकता है, तो फिर ये करें, यार मैं क्यों नहीं हो सकता वो बंदा. वो करने के लिए आपको अपने करियर में री इन्वेस्ट करना है. दैट मीन्स आपको लर्निंग करनी है. दैट मीन्स आपको नेक्स्ट लेवल की जॉब या रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लर्न करना है, वो स्किल्स डेवलप करनी है. अगर आप वो कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली पीपल विल नोटिस. आपने एक सवाल पहले पूछा था कि हाउ डू यू असेस पीपल, कि वो कैसे उनको एबिलिटी को या कैसे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें. सो your skills, your depth of knowledge, your productivity, your delivery will determine automatically. आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा, जताना नहीं पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा. आपकी अपनी ability will speak for itself. आप you think of any sport, football, team sport खास तौर पे, but for that matter any sport, जो अच्छा प्लेयर होता है, valuable प्लेयर होता है, अक्सर आजकल वो कहते हैं ना, द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, वो हर मैच से पहले या टूर्नामेंट से पहले कि दीज आर द प्लेयर्स टू वॉच फॉर, वो कहाँ से आते हैं? देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, देयर एबिलिटी, देयर स्किल्स, दे शाइन आउट. देयर एबिलिटी, देयर प्रोडक्टिविटी, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कॉज, वो डिटर्मिन करता है, वो ऑटोमेटिकली डिटर्मिन कर देता है. एंड पीपल, ये हो ही नहीं सकता कि आपको नोटिस ना करें. सो ये ख़ास तौर पे इनिशियल पार्ट ऑफ द करियर्स में ये इंडिविजुअल्स, अगर आपने आपको ये अपना मोटो बना लें कि मैंने अपने करियर में री इन्वेस्ट करना है, मैंने कोई किताब पढ़नी है, मैंने कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कोई नया मेथड आ गया है, कोई नया वे आ गया है, मैंने वो सीखना है. मैं अगर एक फंक्शन में हूँ, फॉर एग्जांपल आप लीगल के अंदर हैं, सो मैं लीगल में, मैं कॉर्पोरेट लॉ मैंने पढ़ा हुआ है और कॉर्पोरेट लॉ देख रही हूँ. सो क्रिमिनल वाली साइड मुझे नहीं पता, मेरी जॉब का हिस्सा भी नहीं है. बट एज अ वेल राउंडेड लीगल प्रोफेशनल आई ऑल्सो नीड टू, अपने टाइम निकालें, क्रिमिनल का प्रैक्टिकल साइड भी देखने की कोशिश करें. जूरिस्प्रूडेंस की जो वो एरियाज जो आपने शायद किताबों में पढ़े होंगे, प्रैक्टिकली देखो, वो देखने की कोशिश करें. सो वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट रेगुलर बेसिस पे, सो योर नॉलेज बेस विल बी ब्रॉडन एंड वो स्ट्रेंथन हो जाएगी, वो ब्रॉड हो जाएगी. जब आपकी बेस ब्रॉड होगी, सो आप जो उस पर अपनी इमारत खड़ी करेंगे वो इतनी सॉलिड होगी कि वो किसी जलजले से, किसी हवा से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा. ये किताबी बातें नहीं हैं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं. अच्छा, वन फूड आइटम यू कैन नॉट से नो टू? मैं आलू कीमा बड़े शौक से खाता हूँ. मैं जब बाहर पढ़ने के लिए गया था तो उस वक्त सो हलाल फूड है वहाँ पे कम होता था. सो आई यूज समटाइम्स हलाल आइटम्स बट नॉट द हलाल. मैं मजबूरी में खानी पड़ जाती थी. मैं अल्लाह अकबर पढ़ के तो खा लेता था. बट जब मैं ज़्यादातर अपने लिए कुक करता था, यूजली वीक 5-6 दिनों का, तो मैं कीमा ला के उसको भूनता था और भून के खाता था. वो उस वक्त खाना खाया जाता था जायके के लिए नहीं, क्योंकि अब खुद ही पकाना है, खुद ही खाना है, खुद ही अपने कपड़े धोने हैं. वो सिर्फ होता है कि नरिशमेंट पूरी हो जाए. सर, पैडल और टेनिस? मैं एक्चुअली रैकेट स्पोर्ट्स में जो 3-4 स्पोर्ट्स मैंने ट्राई की, बैडमिंटन बहुत रेगुलर खेली है, टेबल टेनिस खेली है, और ये ज़्यादा खेली है मैंने. स्क्वॉश भी खेली है. उसके बाद जब मैं टेनिस बाद में खेली मैंने, तो उसमें आई कुड नॉट फिगर आउट प्रॉपरली, जब 2-4 दफ़ा मैंने खेला, कि उसमें जो फोर्स लगानी है वो टेबल टेनिस की तरह मैं उसको चॉप करने की कोशिश करता था, तो वो वहीं रुक जाती थी.
और अगर मैं उसको स्क्वाश की तरह मारने की कोशिश करता तो बाहर चली जाती थी। सो मैं उससे थोड़ा एलर्जिक हो गया। सो उसके मुकाबले में आई वुड प्रेफर हॉकी, जो आजकल लोगों को पसंद नहीं है। फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन? आई लाइक ट्रैवलिंग, मुझे अल्लाह ने मौका दिया है काफ़ी जगहों पे जाने का। वन डेस्टिनेशन दैट आई कैन गो एनी डे, इट्स आजकल तो सबका फेवरेट हो गया है, बट मेरा बहुत पुराना फेवरेट है, मेरा को 18-20 साल पुराना फेवरेट है, दैट्स टर्की। एंड टर्की के अंदर इस्तांबुल। एंड दूसरा इक्वल फेवरेट है अपार्ट फ्रॉम लाहौर, वो जो मेरा शहर जहाँ मैं पढ़ने के लिए गया था, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। और उसकी रीज़न्स आपने मुझसे पूछी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि बोथ सिटीज़ हैव ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मेलबर्न के अंदर समुंदर भी है, दरिया भी है, पहाड़ भी हैं, सब्ज़ा भी है, और ग्रीनरी है, दरख्त हैं। एंड लाइकवाइज इस्तांबुल में भी ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं। एंड देन द कल्चर, द हिस्ट्री, ख़ास तौर पे इस्तांबुल की। अच्छा, मैं टर्की में मुझे अदर देन बहुत सारे लोग जाते हैं इस्तांबुल, आजकल तो वैसे ही फैशनेबल है या आसान है जाना या रिलेटिवली, बट मैं उसके अलावा उनके रूरल एरियाज़ में मुझे बहुत जाने का इत्तेफाक हुआ है, उन जगहों पे जहाँ यूजुअली टूरिस्ट नहीं जाते। सो मुझे वो कल्चर और वो इस तरह की चीज़ें, उनका फूड बहुत पसंद है। अगेन वो मेल्टिंग पॉट था, अरब वर्ल्ड एंड पर्शियन एंड द यूरोपियन और सेंट्रल एशियन, उसका मिक्सचर ओवर पीरियड ऑफ सेंचुरीज। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हमारे बोनसेस कब आने हैं सर? सो बोनस अपने टाइम पे आएंगे, Which is when? which is inshallah, if everything goes well and all approvals are in place, like last year, usually February, March, April तक भी आते थे, क्योंकि 15,000 लोगों की परफॉर्मेंस असेसमेंट होनी है, उसका फीडबैक कलेक्ट होना है, फिर उसके बाद उसकी सिमुलेशन रन होती हैं, फिर बजट जो हमारा एलोकेट होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और वो बहुत इक्विटेबल बेसिस के ऊपर होती है, बड़ी एक स्ट्रक्चर के तहत होती है। सो प्रोसेस टेक्स टाइम, बट हमने लास्ट ईयर इसको जनवरी में डिस्पर्स कर दिया था, जनवरी सैलरी। हमारी कोशिश होगी कि इफ़ प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू ऑल अप्रूवल्स आर इन प्लेस, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, सो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको जनवरी में करें, हमारी टारगेट है जनवरी में करें। बट हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि जनवरी में आप मुझे आके मेरा गिरबान पकड़ लें। नहीं, आपने कैवियर डाल दिया था बड़ा। हाँ, नहीं, वो बाकियों के लिए भी ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि साल एंड होता है, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट होती है बैंक की, बैंक के फाइनेंशियल्स कंक्लूड हो रहे होते हैं, सो वेरियस अदर फैक्टर्स हैं जो कंक्लूड होने हैं बाय दैट टाइम, जिसकी बेसिस पे ये डिटरमिन होना है कि इंक्रीमेंट और बोनस क्या होगा। सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स, बट we'll try के जितनी जल्दी हो सके। You see, it is incumbent on us now that we have you here to ask this question. Our colleagues wouldn't have let it go कि आपके साथ टाइम मिला था और ये सवाल हमने नहीं पूछा। एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, लोगों को ये भी समझ होनी चाहिए कि उनका इंक्रीमेंट बोनस वो खुद डिटरमिन कर रहे होते हैं। जितनी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी होगी, जितनी बैंक की टारगेट्स अचीव होंगे, जो कि सभी ने करने, मैं भी उसमें शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, 15,000 इंडिविजुअल्स इसके अंदर शामिल हैं, वो सब कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर बैंक अपने टारगेट अचीव करके प्रॉफिटेबिलिटी करता है। So sir, how has your experience been in hiring Gen Z employees? So we would discuss, हमने इंडिविजुअली या कुछ ट्रेनिंग पे जाते हैं तो हम ये बड़ा टॉपिक डिस्कस होता है, ख़ास तौर पे जो मेरी एज के, ज़माना कमल मसीह के जो लोग हैं, वो एक तो हमें तो ये एडवांटेज ये है कि वी बिलोंग टू दैट एरा जिन्होंने इंटरनेट से पहले वाला टाइम भी देखा हुआ है, फिर इंटरनेट DSL का टाइम देखा हुआ है, फिर उसके बाद उसकी प्रोग्रेशन देखी है, ब्रॉडबैंड देखा हुआ है, 5G एंड वो सारा। सो हमें वो एडवांटेज है। अब ये एडवांटेज और बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। अच्छा, जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, इसमें जो मेरे नज़दीक एज़ फार एज प्रोफेशनल्स आर कंसर्न एंड सभी के लिए,
जो जेन जी के लिए हमें अपने आप को अंडरस्टैंड ये करना है कि द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन दैट वी हैड एंड व्हाट जेन जी हैज़, एंड जो बीच वाला को आप थोड़ा सा एलिमिनेट कर दें, जो जनरेशन एक्स एंड यू नो वट एवर मिलेनियल्स और ये वो फलाना, उनको ज़रा थोड़ा फ़िलहाल टाइम फॉर दिस डिस्कशन पर्पसेस. सो जेन जी के पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, उनका प्रोसेसर बहुत फास्ट है, उनका अटेंशन टाइम बहुत शॉर्ट है, और ये सारी इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं. उनकी प्रेफरेंसेस बहुत डिफरेंट हैं, उनका वे ऑफ स्पेंडिंग डे एंड नाइट इज़ डिफरेंट है. हमारे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज एंड वो इस तरह वाली चीज़ें होती थी, अब वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है. फिर कोविड आ गया, कोविड ने एक नई चीज़ सिखा दी. अब जो डिस्टेंट एंड वर्चुअल वर्ल्ड की एक नई डायनामिक, वो पहले एक्सपेरिमेंटल हुई. ऑल्दो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ये चीज़ें उससे पहले से एग्जिस्ट करती थी और इन यूज़ थी, और ऑर्गेनाइजेशन में भी इन यूज़ थी, और उसको एज ए यूटिलिटी यूज़ किया जाता था कि ट्रैवल कम करना पड़े. बट वो एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, और उसकी उस तरह से अडॉप्ट हो जाएगा कि वो एक टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो जाएंगी और ब्रॉडबैंड इस तरह से अवेलेबल होगा कि आपके पाम के ऊपर, आपके हैंडल डिवाइसेस के ऊपर ये आ जाएगा और आप ऑन द गो हो जाएंगे, और उसमें अंदर वेरियस फीचर्स एंड डॉक्यूमेंट शेयरिंग और ये वो. आई जस्ट गिव यू एग्जांपल. सो जेन जी वो यही, उन्होंने पहले वाला टाइम ही देखा, हमने देखा है, सो हम उसी से कंपेयर करते हैं. उनके पास वो कंपैरिजन नहीं है. सो उनका जो कल्चरल बाउंड्रीज हैं, उनके जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, जो सोशल नॉर्म्स हैं, हम अपने एंगल से इसको देख रहे हैं, अपने एनक से देख रहे हैं, अपने लेंस से देख रहे हैं. वो उसको, उनके लिए वो ऑल टुगेदर वही है जो है उनके पास. जो डिसीजन मेकर्स हैं, people who are at the helm of the affairs, they need to understand and adopt and adapt to their needs. उन्होंने हमारे से नहीं करना. सो हायरिंग हो, चाहे वो उसके बाद जब वो हमारे एम्प्लॉयज़ बन जाएं, टीम मेंबर्स बन जाएं, सो हमें वो चीज़ें उसी के मुताबिक अंडरस्टैंड करनी है. Right, that was a nice and illuminating rapid fire, if only a little bit of a slow burn rapid fire. But I think let's head back towards the bigger picture. आपने बैंक ऑफ पंजाब की रिकग्निशन की बात की, आपने बात किया कि हम लार्जेस्ट डिजिटल लेंडर बने हैं, लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर, द बेस्ट बैंक इन एग्री, बेस्ट बैंक इन SME. One aspect that you have neglected so far is our performance in the women inclusion space. हम कंसिस्टेंटली बैंकिंग ऑन इक्वालिटी स्कोर कार्ड स्टेट बैंक का जो है उसको टॉप कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से. PBA पाकिस्तान बैंकिंग अवार्ड्स ने भी वुमेन इंक्लूजन के अवार्ड में 2 years रनिंग हमें मिले हैं, तो हम लीड कर रहे हैं इंडस्ट्री को. तो व्हाट आर सम इनिशिएटिव्स और स्पेशल फोकस दैट्स बीइंग एक्सर्टेड इन दिस स्पेस टू मेक श्योर दैट सच अचीवमेंट्स कीप कमिंग? बैंक ऑफ पंजाब की रिकग्निशन एंड एक्नॉलेजमेंट तो इस स्पेस में, इस डोमेन में इस्टेब्लिश हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह. हमने इसमें काम भी किया है और उसी की रिकग्निशन हुई है कि हमें अवार्ड्स, नॉट ओनली पाकिस्तान, जो ऑस्कर्स ऑफ बैंकिंग इन पाकिस्तान आप समझ लें, वो मुसलसल 2 साल से मिल रहे हैं. बट देयर आर मेनी अदर अवार्ड्स एंड अदर बॉडीज़ के वो अवार्ड्स भी लोकल एंड इंटरनेशनल हमें मिले हैं. अच्छा, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने खाली रिटोरिक पे या कॉस्मेटिक्स पे तवज्जो नहीं दी, हमने रियल टर्म्स में रियल इनिशिएटिव्स लिए. अबाउट 4-5 years बैक आर एम्प्लॉई बेस की जो कॉम्बिनेशन था, वी वर अबाउट 18% तकरीबन, स्लाइटली लेस दैन 18% के करीब थे हम, रेशो एम्प्लॉय फीमेल मेल की. अब हम तकरीबन 25 के करीब टच करने वाले हैं. सो दैट मीन्स एवरी ईयर हमने पिछले 4-5 साल में 1.5% मीन्स कि 10-12 हज़ार एम्प्लॉई के ऊपर 1%, यू कैन इमेजिन कि हमें वो ज़्यादा हायर करने हैं. यू डू द सिंपल मैथमेटिक्स. अच्छा, हमने ये नहीं कि हमने को प्रेफरेंस दी है, हमने सिर्फ फील्ड ओपन किया है इक्वालिटी का, वे वुमेन कैन अप्लाई अलॉन्ग विद सम स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स. हमने वुमेन रिटर्नशिप का एक इनिशिएटिव लिया,
जहाँ पे जो ख़वातीन females जो they were working before and then they left the job because of some reason for their own choice or something else, the family ways, or they can be any, or the transfers of the husbands or the parents, or they left the job and then they want to come back. हमने उनको 6 महीने की इंटर्नशिप पे रखते हैं and then they can become a full-time employee, और वो पेड अच्छी खासी पेड इंटर्नशिप होती है, उसको हम रिटर्नशिप कहते हैं. देन वी हैव स्पेसिफिक वुमेन बैच लेते हैं. तो मैं वुमेन के साथ अगर मैं डाइवर्सिटी को भी ऐड कर लूँ, सो वो उसमें हम एक वुमेन बैच एक तकरीबन कोई अच्छा खासा बड़ा 50-55 के करीब हर साल स्पेशल, अपार्ट फ्रॉम ऑल पोजीशन वेयर वुमेन कैन अप्लाई ऑन इक्वल फुटिंग बेसिस, वो तो हैं ही हैं, ये एडिशनल हमने किए हुए हैं. फिर हम अवेयरनेस हमने अपने स्टाफ में, एम्प्लॉयज़ में ये क्रिएट करने की कोशिश की है थ्रू वेरियस डिस्कशंस, फोकस ग्रुप्स, वेरियस सेमिनार्स इंटरनली. कल भी हमने हमारा नेशनल वर्किंग वुमेन डे था, सो वी इनवाइटेड समबडी फ्रॉम आउटसाइड एन अकम्प्लिश्ड वुमन. वो आके उनको हमने कहा कि आप सिर्फ हमारे एम्प्लॉय से सिर्फ ये बात करेंगे हाउ डिड यू अचीव व्हाट यू अचीव. एंड ऑल्दो ये जो हमारी कोलीग्स जो पार्टिसिपेंट्स थी वो दे देमसेल्फ हैव गॉन थ्रू दोज चैलेंजेस और लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज, लुकिंग आफ्टर एक सोसाइटी में इतनी आसानी नहीं है फीमेल के लिए. पहले तालीम हासिल करना, फिर उसके बाद जॉब शुरू करना, फिर उसके बाद जॉब को कंटिन्यू करना, फिर अपनी फैमिलीज़ को भी घर जाके भी लुक आफ्टर करना, किचन भी लुक आफ्टर करना और काम भी पूरा करना, और इक्वल बेसिस के ऊपर उनके टारगेट्स और अचीवमेंट्स या उनके वो तो वही होते हैं. सो इसके अंदर हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को कॉन्शियस करें, अवेयर करें, सेलिब्रेट करें उन विमेन को जिन्होंने ऑलरेडी अचीव किया, और उनको रोल मॉडल के तौर पे पेश करें. इन आवर ओन स्मॉल वे, वी आर नॉट द कंट्री, वी आर एन ऑर्गेनाइजेशन, 900 ब्रांचेस, वी हैव आवर ओन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस. So rather than making it a rhetoric based, we try to, और ये जर्नी है, ये एकदम आज फैसला करें कल अचीव नहीं हो सकता. इसमें ग्रेजुअली यू रीच अप द लेडर. ये हमारी कोशिश है इस डोमेन के अंदर. एंड लाइकवाइज फिर हमारा जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, मैं आई डोंट लाइक टू कॉल देम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, उसकी और तरह से होता है. सो आई कॉल देम, एंड मेनी अदर पीपल कॉल देम डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, सो वी कॉल देम डैप. हम उनका भी एक बैच रन करते हैं, उनको बुलाते हैं, जिस तरह वुमेन को आते हैं उनको ट्रेनिंग करते हैं, उन्हें रेडी करते हैं फॉर देयर जॉब्स, और ताकि वो प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द टीम हो. एंड दोज इनिशिएटिव्स अलॉन्ग विद द इक्वल एज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर एल्सवेयर. और हैरानी होगी आपको कि हम ये फैक्ट भूल जाते हैं कि व्हेन यू सी द बोर्ड, चाहे वो लाहौर बोर्ड हो, चाहे गुजरांवाला बोर्ड हो, सियालकोट बोर्ड हो, मुल्तान बोर्ड हो, फैसलाबाद बोर्ड हो, सरगोदा बोर्ड हो, जो हमारे इंटरमीडिएट्स के या मैट्रिक के बोर्ड्स हैं, उसके जब रिज़ल्ट्स आते हैं या यूनिवर्सिटीज़ के रिज़ल्ट्स आते हैं, आप हैरान होंगे ये देख के कि उसमें जो टॉप पोजीशन होल्डर्स हैं, द अचीवर्स हैं, कितनी, क्योंकि वहाँ तो एग्ज़ाम सेम हो रहा होता है, सेम कुरिकुलम पढ़ रहे होते हैं, वहाँ कितनी हमारी फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं वो पोजीशन ले रही होती हैं, और अब तो बहुत सारी जगहों पे वो आउट क्लास कर रही होती हैं मेल्स को. बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही कहा. चेंज बिगिंस एट होम. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम होम. इट्स अ ट्रिकल इफेक्ट. अच्छा सर, सो लुकिंग बैक 10 years from now, what HR initiatives would you like to leave behind as legacy in BOP? I think if we are all together as an organization, as a management team, as our colleagues down to the bottom, to the security guards जो हमारे दरवाज़ों पे खड़े होते हैं, and the office boys and tea boys जो बहुत important team members हैं, हमारे टेलर हैं, जो हमारा फ्रंट ऑफिस का स्टाफ है, हमारे ब्रांच मैनेजर्स हैं, एंड देन अपवर्ड्स वेरियस अदर फंक्शंस के टू द CEO लेवल. अगर हम ये अचीव करने में कामयाब हो जाए, कल को हमें ये कोई कह दे कि BOP is the best managed bank, I think we have done our job. Wonderful.
Wonderful. And we're well on our way with Yeah, your sure. leadership and the current structure in place. Jawad साहब, वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया. It has been a very insightful and illuminating session with you, as always. Pleasure is all mine. Very interesting Thank you conversation. very much, sir. Thank you. And thank you for joining us. And see you next time. Thank Shukriya. you.